Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Shahid Akram Javed, Subject Specialist Chemistry at Division Public School and Inter College, Sahiwal. I hope you are studying well by using digital platform of DPS. Let me start our today's topic of Chemistry FSD second year. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We have started chapter number 8, aliphatic hydrocarbons. In previous lecture, we have studied the hydrocarbons, their classification and nomenclature of hydrocarbons. In the previous lesson, we have studied the nomenclature of hydrocarbons for alkane. In today's topic, we will study the nomenclature of alkenes and alkynes. So, let's move toward today's topic. Today's topic is 8.2, nomenclature of alkenes and alkynes. Learning outcomes of today's topic are: we will see what is nomenclature of alkenes, and later we will see nomenclature of alkynes. Dear students, we are familiar that nomenclature is a systematic method to give the names of different organic compounds. In this chapter, we will focus on the nomenclature of aliphatic hydrocarbons, alkanes, alkenes and alkynes. In previous lesson, we have studied the nomenclature of alkanes. Let me move toward the nomenclature of alkenes and alkynes. Rules for nomenclature of alkenes. Students, पिछले लेसन में हमने अल्केन्स की नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स स्टडी किए थे. इसी तरह अल्कीन्स और अल्काइंस की नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स बिल्कुल वही हैं जो अल्केन्स के लिए हैं. यानी कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन या वो कार्बन एटम्स की देखनी है, उसकी नंबरिंग करनी है उस तरफ से जिधर से ब्रांच नज़दीक हो, और फिर उस पर नंबरिंग करके ब्रांच की पोजीशन को लोकेट करना है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की नेम को हमने स्टेम नेम बना लेना है. एक दो पॉइंट का डिफरेंस है, वो हम इन रूल्स के अंदर जब स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम इन रूल्स को हाईलाइट करते हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं. नंबर 1, select the longest continuous chain that contains the carbon-carbon double bond as the parent chain. अल्केन में क्या था, क्योंकि तमाम कार्बन एटम जब आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच थे, अल्कीन्स में कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो इसलिए हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो. देन चेंज द एंडिंग of the name of alkane of identical length from ane to ene. मीन कि कार्बन एटम की जो चेन है, अगर सपोज 6 कार्बन की है, तो उसके लिए हम अल्केन के लिए नाम यूज करते हैं हेक्सेन. आखिर पर जो एन है इसको हटाकर उसकी जगह पर हमने अल्कीन फैमिली का जो सुफिक्स है वो ईन लगाना है. तो इस तरह ये कार्बन कार्बन चेन 6 कार्बन के लिए बन जाएगा हेक्सेन. Number 2, number the chain so as to include both carbon atoms of the double bond. Numbering begins from the end nearer to the double bond. Number 3, designate the location of the double bond by using the number of first atom of the double bond as a prefix. Number 4, indicate the locations of the substituent groups by the numbers of the carbon atoms to which they are attached. Number 5, if the parent chain contains more than one double bond, they are alkadienes for 2
अल्का ट्राईईन्स फॉर 3 एंड सो ऑन। आइए अब एग्जाम्पल के साथ इन रूल्स को हम स्टडी करते हैं। The IUPAC rules for naming alkenes are similar in many respects to those for naming alkanes. जहां पर थोड़ा डिफरेंस है वो साथ साथ मैं इंडिकेट करता हूं। सबसे पहले अपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की शामिल करनी है। उसको हमने पेरेंट चेन या स्टेम नेम बना लेना है और उसके आखिर में एन को हटाकर इन लगाना है। सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन that contains the carbon-carbon double bond as the parent chain and change the ending of the name of the alkane of identical length from ane to ene. For example, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है। इसमें अगर आप चेन को लॉन्गेस्ट चेन को पहले सेलेक्ट करें, अगर हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन एटम्स की बन रही है, लेकिन इसमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन नहीं बनेगी। अगर अल्केन के लिए हम यूज कर रहे होते तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन थी। क्योंकि हम अल्कीन की नोमेनक्लेचर को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पहला डिफरेंस यही है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वो लेनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शामिल हो। सो longest continuous chain will be this one 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन एटम की चेन बन रही है। तो इसमें हमने हेक्सेन के आखिर पर एन को हटाकर उसकी जगह पर इन लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हमारा स्टेम नेम बन जाएगा हेक्सेन। नंबर 2, number the chain so as to include both carbon atoms of the double bond. Numbering begins from the end near to the double bond. For example, हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर गिवन है। इसके अंदर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इन दोनों कार्बन एटम को हम शामिल करेंगे। नंबरिंग हम राइट साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड राइट साइड से नजदीक आ रहा है। तो इस तरह ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 6 कार्बन एटम्स की है, तो ये नाम बन गया हेक्सेन। रूल नंबर 3, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस 4 एटम की है जिसका नाम ब्यूटीन बनेगा, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले 2 एटम्स के दरमियान में है, तो लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए लोकेट करेंगे। तो इसका नाम बन जाएगा 1 ब्यूटीन। जैसा कि पिछली एग्जांपल में हमने देखा था, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे 2 हेक्सेन। एक और एग्जांपल देखें, 5 कार्बन एटम की चेन है, डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान में है, तो हम लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम को पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे। 5 कार्बन एटम की चेन पेंटीन, जो कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जिसको हम कहेंगे 1 पेंटीन। रूल नंबर 4, indicate the locations of the substituent groups by the numbers of the carbon atoms to which they are attached. मसलन हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 4 कार्बन एटम्स की है, नंबर 2 और नंबर 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है और नंबर 2 पर एक ब्रांच मीथाइल ग्रुप मौजूद है। स्टेम नेम हमारा बनेगा ब्यूटीन, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, ये बन गया 2 ब्यूटीन, और कार्बन नंबर 2 पर मीथाइल ग्रुप है जिसको आप कहेंगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की चेन है। नंबरिंग हम राइट साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, तो 1 2
3 4 5 6, ये बन गया हेक्सीन। कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड तो हम कहेंगे 2 हेक्सीन। कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 5 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, उन दोनों को शामिल करेंगे, ये बन जाएगा 2 5 5 ट्राई मिथाइल। ट्राई हम यूज करेंगे 3 के लिए, ये बन जाएगा 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। रूल नंबर 5, if the parent chain contains more than one double bond, they are alkadienes for 2, alkatrienes for 3 and so on. अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं मोनोइन्स, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गिवन कंपाउंड के अंदर एक ही डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं डाईइन, और अगर 3 डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं ट्राईइन। इसी तरह 4 हो तो टेट्राइन, और उसके शुरू में अल्काइल ग्रुप का नाम लगाएं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, कार्बन नंबर 1 2 के दरमियान, या इधर से नंबर करें तो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान, इधर से नंबर कर रहे हैं तो दूसरा बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान में, और अगर हम इधर से नंबर करें तो फिर भी 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है। तो ये हमारा एक डाईइन मॉलिक्यूल है। इसकी जब हम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ब्यूटीन है, लेकिन चूंकि 2 ब्यूटीन है तो इसको आप कहेंगे ब्यूटाडाईइन, ब्यूटाडाईइन। अब पोजीशन ऑफ इन के लिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, लोएस्ट पोजीशन ऑफ कार्बन एटम को हम इन की पोजीशन के लिए लोकेट करेंगे। ये बनेगा 1 3 ब्यूटाडाईइन, 1 3 ब्यूटाडाईइन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ब्यूट 4 कार्बन एटम के लिए 1 3 डाईइन, जैसा कि अल्काइल ग्रुप का पहले बोल दें ब्यूट, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 और 3, ब्यूट 1 3 डाईइन। Let me move toward the rules for nomenclature of alkynes. Number 1, the largest continuous carbon chain containing triple bond will be selected. Then the name of the identical alkane is changed from ane to ine. Longest continuous chain हमने वो select करनी है जिसमें triple bond शामिल हो, और respective alkane का आखिर पे ane हटाकर उसकी जगह पर हमने YNE लगा देना है। Number 2, the position of triple bond is shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond. Number 3, if a hydrocarbon contains more than one triple bond, it is named as alkadiene and alkatriene depending upon the number of triple bonds. Number 4, if both double and triple bonds are present in the compound, then ending enine is given to the root. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को हम आगे एग्जांपल के साथ डिटेल में स्टडी करते हैं। Number 5, lowest possible number is assigned to a double or a triple bond irrespective of whether ene or ine gets the लोअर नंबर। इसी रूल का एक दूसरा हिस्सा भी है, पार्ट बी। इन केस अ डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशंस, द डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। तो आइए अब इन रूल्स को एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं ताकि हम आसानी से अल्काइंस की नोमेनक्लेचर को स्टडी कर सकें। द फर्स्ट रूल वाज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस चेन of carbon atoms containing triple bond is selected. सबसे पहले हमने वो longest continuous chain लेनी है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो। The name of the identical alkane is changed from ene to ine. For example,
2 कार्बन आइटम की चेन के लिए हम यूज करते हैं इथेन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम कहेंगे इथाइन। 3 कार्बन आइटम के लिए प्रोपीन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है जिसको हम कहेंगे प्रोपाइन। नंबर 2, द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज shown by numbering the alkyne so that minimum number is assigned to the triple bond। जैसा कि यहां पर 3 कार्बन आइटम की चेन है, नंबरिंग हम राइट साइड से कर रहे हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक है। एक और एग्जांपल देखें, 4 कार्बन आइटम की चेन है जिसको आप कहेंगे ब्यूटाइन। कार्बन नंबर 1 और 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोअर नंबर को हम शामिल करेंगे पोजीशन फॉर ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये बन जाएगा 1 ब्यूटाइन। एक और एग्जांपल देखें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम की चेन है। 6 कार्बन आइटम का रिस्पेक्टिव अल्केन बनता है हेक्सेन, क्योंकि ये अल्काइन फैमिली का मेंबर है जिसको आप कहेंगे हेक्साइन। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसको आप कहेंगे 1 हेक्साइन, ये हमारा स्टेम नेम बन जाएगा। और 5वें कार्बन आइटम पर एक मीथाइल ग्रुप है, ये कहलाएगा 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। हमेशा याद रखना है कि स्टेम नेम सबसे आखिर पे आता है और अल्काइल ग्रुप्स अल्फाबेटिकली पहले आते हैं विद देयर पोजीशन। नंबर 3, if a hydrocarbon contains more than 1 triple bond, it is named as alkadiene and alkatriene depending upon the number of triple bonds। For example, इस चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं जिसको आप डाइआइन कहेंगे। नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन, क्योंकि ये 2 ट्रिपल बॉन्ड है इसको आप कहेंगे हेक्साडाइआइन। हेक्साडाइआइन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 और 5, इसको आप कहेंगे 1 5 हेक्साडाइआइन। इसको आप यूं भी कह सकते हैं हेक्स 1 5 डाइआइन। Number 4, if both double and triple bonds are present in the compound, then ending enine is given to the root। मतलब अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं तो हम एंडिंग इन और आइन दोनों को रूट में शामिल कर सकते हैं। किस तरह? एग्जाम्पल के साथ देखें। ये हमारे पास 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड चेन में पहले आ रहा है और डबल बॉन्ड चेन में बाद में आ रहा है। दूसरी एग्जांपल में डबल बॉन्ड चेन में पहले है और ट्रिपल बॉन्ड चेन में बाद में आ रहा है। दोनों को हम शामिल कर सकते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को देखें, ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफर किया गया है और डबल बॉन्ड को बाद में। तो इसका ये 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम की चेन बनी है, जिसको आप कहेंगे पेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने चेन में शामिल कर दिया और नंबरिंग हमने ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से की है। ये बन गया 3 पेंटीन, तीसरे और चौथे के दरमियान डबल बॉन्ड है, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 पेंटीन 1 आइन, 3 पेंटीन 1 आइन। दूसरे एग्जाम्पल को देखें, प्रेफर किया गया है लेफ्ट साइड से नंबरिंग को, जहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, जिसको आप बोलेंगे 1 पेंटीन, क्योंकि 5 कार्बन आइटम की चेन है और तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि हम डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट रूल में आपको एक जनरल रूल बता देता हूं, आपको आसानी से इस तरह के कंपाउंड में नाम देने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। Lowest possible number is assigned to a double or a triple bond, irrespective of whether ene or ine gets the lower number। आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से किसी को भी लोअर पोजीशन जब वो दे सकते हैं, बेशक इन पहले आ रहा है या आइन पहले आ रहा है। अब उसमें जो पिछले बॉन्ड में मैंने कहा था कि आप हमेशा प्रेफर कर लें कि आप डबल बॉन्ड को ही
लोअर नंबर जब वो दें, क्योंकि नेक्स्ट एक और रूल आ रहा है उसके अंदर डबल बॉन्ड को ही प्रेफर किया गया है, तो इससे आपको एक जनरल रूल बन जाएगा कि आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर दोनों आ जाएं तो फिर आप डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर चेन में हमने डबल बॉन्ड को शामिल किया है और नंबरिंग हमने ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से की है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम की चेन, इसके लिए यूज करते हैं पेंट, क्योंकि डबल बॉन्ड में हमने चेन को शामिल किया तो ये बन गया पेंटीन। जबकि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है जिसको आप कहेंगे 1 आइन, 3 पेंटीन 1 आइन। एक और एग्जांपल देखें, यहां पर 5 कार्बन एटम की चेन, इसमें डबल बॉन्ड को हमने चेन में शामिल किया पेंटीन, और तीसरे और चौथे के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड इसको आप कहेंगे 3 आइन। In case a double and a triple bond are present at identical positions, the double bond is given the lower number. यानी कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जैसी पोजीशन पर आ जाएं तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रेफर कर लें। यही वो पॉइंट है जिसमें डबल बॉन्ड को प्रेफर किया गया है, तो इसलिए आप डबल बॉन्ड की तरफ से ही हमेशा प्रेफरेंस दें। मसलन ये 5 कार्बन एटम की चेन है, नंबरिंग हमने डबल बॉन्ड की तरफ से कर दी है, और ट्रिपल बॉन्ड चौथे और पांचवें के दरमियान में है तो उसको आपने 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड को लोकेट किया है। इस एग्जांपल में हमने ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग की गई थी और उसको 1 पोजीशन पे हमने लोकेट किया है। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग कर लें और चेन में उसको शामिल करें। ये बन जाएगा 5 कार्बन की चेन पेंटीन, कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा 1 पेंटीन, और चौथे पर 4 आइन। ब्रांच तीसरे कार्बन पर मौजूद है, इसको आप कहेंगे 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। आइए अब चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको हम जाओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, राइट स्ट्रक्चर फार्मूलाज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नंबर 1 आइसोब्यूटाइलीन, नंबर 2 2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन, नंबर 3 2,5 हेप्टाडाइईन, नंबर 4 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन, नंबर 5 विनाइल एसिटाइलीन, नंबर 6 1,3 पेंटाडाइईन, नंबर 7 1 ब्यूटाइन, नंबर 8 3 N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन, नंबर 9 विनाइल ब्रोमाइड, नंबर 10 ब्यूट 1 3 आइन, and number 11 4 methyl 2 pentyne, number 12 isopentane। ये कुछ नाम गिवन है, हमने इनका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय IUPAC सिस्टम। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फार्मूलाज गिवन है, हमने इनका IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली नाम देना है। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने नाम से स्ट्रक्चर बनानी है और स्ट्रक्चर से किस तरह हमने नाम लिखना है। तो उसके लिए पहले प्रोसीजर को फॉलो करें। नंबर 1, यूज द लास्ट पार्ट ऑफ द नेम, जो कि स्टेम नेम है, उस स्टेम नेम को हमने शुरू करना है। ये हम प्रोसीजर पहले देख रहे हैं ए पार्ट के लिए, जिसमें हमको स्ट्रक्चर बनानी है नाम से। नंबर 2, ड्रा स्टेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, स्टेम नेम के कार्बन एटम्स की आप स्टेट चेन बना लें। नंबर 3, दिस इज द स्केलेटन फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। मेक नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द चेन, नंबरिंग किसी भी तरफ से कर लें, क्योंकि
आप स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं, लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज सेड इन द नेम। अब आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट कर दें जिस तरफ से भी आपने नंबरिंग की हुई है। ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है कंपाउंड के नाम में गिवन होगी। नंबर 6, नाउ ड्रॉ ऑल द अल्काइल ग्रुप्स वन बाय वन ऑन द कार्बन चेन एट इट्स पर्टिकुलर पोजीशन mentioned in the name of the compound. Number 7, this will represent the structural formula from the name of the compound. तो आइए अब इन रूल्स को यूज करते हुए गिवन नेम से हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। The first one is isobutylene। ये 4 कार्बन एटम का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। कॉमन नेम गिवन है, 4 कार्बन एटम की चेन बनाएं 1 2 3 4, लेकिन चूंकि ये आइसो मौजूद है, इट मीन के 4 कार्बन एटम की चेन में एक ब्रांच होगी। तो अगर हम नंबरिंग में ये 3 कार्बन एटम को शामिल करें जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक इसके ऊपर जो वो मिथाइल है, तो ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइलीन। नंबर 2, 2 3 4 4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। पेंटीन हमारा स्टेम नेम है, 5 कार्बन एटम की चेन, उसमें दूसरे कार्बन एटम पर हमने डबल बॉन्ड लगाना है और बाकी 4 मिथाइल ग्रुप हमने 2 3 4 4 पर लोकेट करने हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम और 5वां कार्बन एटम की चेन बन गई। कार्बन नंबर 2 पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया और कार्बन नंबर 2 3 4 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये बन गया 5 कार्बन एटम की चेन पेंटीन, दूसरे पर डबल बॉन्ड 2 पेंटीन और कार्बन नंबर 2 3 4 4 4 मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। नंबर 3, 2 5 हेप्टाडाइईन। ये 7 कार्बन एटम की चेन है और इसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पर। ये हमारे पास 7 कार्बन एटम की चेन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग किधर से भी कर लें, यहाँ पर मैंने नंबरिंग दूसरी तरफ से करें या इस तरफ से करें तो सेम आ रही है। तो कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 5 पर डबल बॉन्ड, तो ये डाइईन बन गया। क्योंकि 7 कार्बन एटम है तो इसको हेप्टाडाइईन। इस स्ट्रक्चर का नाम यूं भी हो सकता था हेप्ट 2,5 डाइईन। नंबर 4, 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन। हमारे पास 6 कार्बन की चेन है जिसमें दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है और चौथे और 5वें पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड मौजूद है हेक्सीन। कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, ये 2 हेक्सीन। कार्बन नंबर 4 और 5 पर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये बन गया 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सीन। नंबर 5, विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन ये कॉमन नेम गिवन है। विनाइल में 2 कार्बन एटम होते हैं और एसिटाइलिन में भी 2 कार्बन एटम होते हैं। टोटल 4 कार्बन एटम की चेन बनती है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम की चेन है। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल एसिटाइलिन है जिसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल को हम एसिटाइलिन कहते हैं। एसिटाइलिन का एक H यहां से हटाया और उसकी जगह पर हमने ये एक विनाइल ग्रुप लगा दिया। डबल बॉन्ड इथीन से जो अल्काइल ग्रुप ड्राइव होता है उसको हम बोलते हैं विनाइल। तो ये बन गया विनाइल एसिटाइलिन। नंबर 6, 1 3 पेंटाडाइईन। 5 कार्बन एटम की चेन, 2 डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 1 और 3 पर। 5 कार्बन एटम की चेन, कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड और 3 पर डबल बॉन्ड, 1 3 पेंटाडाइईन। नंबर 7, 1 ब्यूटाइन। 4 कार्बन एटम की चेन, एक ट्रिपल बॉन्ड,
ये 4 कार्बन एटम की चेन है, पहले पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये कहलाएगा 1 ब्यूटाइन। नंबर 8 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन। 5 कार्बन एटम की चेन जिसमें 2 डबल बॉन्ड 1 और 4 पर और तीसरे पर n प्रोपाइल ग्रुप मौजूद है। n प्रोपाइल 3 कार्बन एटम वाला स्ट्रेट चेन ब्रांच है। अल्केन की नोमेनक्लेचर वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन वाला ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगी, 5 कार्बन एटम की ये चेन, पहले पर और चौथे पर डबल बॉन्ड है और तीसरे पर ये एक स्ट्रेट चेन n प्रोपाइल ग्रुप मौजूद है। ये बन गया 3 पर n प्रोपाइल 1 4 5 कार्बन की चेन, पेंट और डाइईन। नंबर 9 विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ग्रुप पीछे मैंने बताया 2 कार्बन एटम वाला अल्कीन, उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो विनाइल ग्रुप बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल और इसके ऊपर एक ब्रोमाइड लगा है, विनाइल ब्रोमाइड। नंबर 10 ब्यूट 1ene 3ine। 4 कार्बन की चेन, पहले पर डबल बॉन्ड, तीसरे पर आइन। 4 कार्बन की चेन, ब्यूट, पहले पर डबल बॉन्ड, तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड, ब्यूट 1ene 3ine। आइसोपेंटेन 5 कार्बन वाला ब्रांच्ड 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ब्रांच आइसोपेंटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो आइसोपेंटीन होता, तो आप किसी भी जगह पर एक डबल बॉन्ड लगा सकते थे। 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। 5 कार्बन की चेन जिसमें दूसरे पर डबल बॉन्ड और चौथे पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, दूसरे पर डबल बॉन्ड और कार्बन नंबर 4 पर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। आइए अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर गिवन है, वहां से अपने उसका नेम देना है। नंबर 1 एक्सपेंड द स्ट्रक्चर इफ इट इज इन कंप्रेस्ड फॉर्म। सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को देखना है कि अगर वो कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो पहले आप उसको खोल लें। खोलने के बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये कितने कार्बन की चेन बन रही है। नंबर 2 select the longest continuous chain of carbon atoms containing double or triple bond. Number 3 give the numbering to carbon chain starting nearest to double or triple bond and select that chain as a stem name. Number 4 locate the position of any branch on the longest carbon chain. अगर भी इसके ऊपर कोई ब्रांच है तो उसकी पोजीशन को लोकेट करें। नंबर 5 अगर 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ये 3 अल्काइल ग्रुप सिमिलर हैं, तो इसके लिए आप डाई या ट्राई यूज कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को भी बताएंगे। नंबर 6 नेम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अल्फाबेटिकली। अगर एक जैसे अल्काइल ग्रुप हैं तो आप डाई ट्राई यूज करेंगे, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो उनको अल्फाबेटिकली नाम देंगे। नंबर 7 नेम ऑफ ब्रांचेस कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय द स्टेम नेम। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नेम ऑफ ब्रांच पहले आएगा और आखिर पर स्टेम नेम आएगा। तो आइए इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। नंबर 1 इज, ये आपके पास एक कंप्रेस्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर गिवन है, तो पहले आप इसको खोलें। ये CH2 2 दफा इस चेन में शामिल है, CH2 ग्रुप जो है वो चेन में शामिल होता है। इसको एक्सपेंड किया, ये CH3, ये CH, ये CH, CH2 2 दफा CH2, CH2 और ये आगे CH3। अब कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब आपको ये क्लियर अंदाजा हो गया है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। यहां से आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसको आप ईन लगाएंगे 6 कार्बन के लिए। हेक्सीन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, तो ये बन गया 2 हेक्सीन। नंबर 2
यहाँ पर भी ये कंप्रेस फॉर्म है, इस कार्बन पर ये 2 मीथाइल ग्रुप लगे हैं, इसको खोलें, एक्सपेंड करने पर इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगी, CH2, ये गलती से CH3 लिखा गया है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड C CH3 2 दफ़ा, एक दफ़ा इधर और एक दफ़ा इधर, तो अब इसको हम नाम देंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, 3 कार्बन की चेन प्रोपीन, दूसरे पर मीथाइल ग्रुप, ये नोट कीजिएगा, ये CH2 ग्रुप है। नंबर 3, यहाँ पर ये कंप्रेस फॉर्म में, इसको आप इसके ऊपर 2 दफ़ा लिखेंगे, ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब वो लग रहा है, एक्सपेंड करें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन गया। तो अब 5 कार्बन की चेन, पहले पर डबल बॉन्ड 1 पेंटीन, दूसरे पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये बन गया 2 आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन, 2 आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन। नंबर 4, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, 2 डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन की चेन है, तो ये डाइईन बनेगा, कार्बन नंबर 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन, इसको आप यूं भी कह सकते हैं ब्यूट 1,3 डाइईन, क्योंकि डाइईन की पोजीशन 1 और 3 है। ये स्ट्रक्चर, इस पे इथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, पहले और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दूसरे पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 इथाइल 1 पेंटीन, 2 इथाइल 1 पेंटीन। नंबर 6, 3 कार्बन की चेन विद ट्रिपल बॉन्ड, पहले और दूसरे के दरमियान है, तो इसको आप बोलेंगे 1 प्रोपाइन, या सिंपली इसको प्रोपाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड इधर हो तब भी नाम यही रहेगा। नंबर 7, 4 कार्बन की चेन, दरमियान वाले 2 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है, तो 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शामिल है, तो आप वही रूल यूज करें, नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से, और आइन को आप पोजीशन के साथ लोकेट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, हेक्स, पहले पर और 5वें पर डाइईन और तीसरे पर आइन, हेक्स 1,5 डाइईन 3 आइन। नंबर 9, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, अब ट्रिपल बॉन्ड जब वो दोनों साइडों से एक पोजीशन पर है, आप इधर से नंबर निकाल लें या इधर से नंबर निकाल लें, डबल बॉन्ड को आप चेन में शामिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन आप बोलेंगे इसको, और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 3ईन 1,5 डाइआइन, तीसरे पर डबल बॉन्ड 3ईन पहले और 5वें पर ट्रिपल बॉन्ड। नंबर 10, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एग्जैक्ट पोजीशन पर हैं, नंबर एक डबल बॉन्ड की तरफ से कर लें और आइन को एंड पर लिख दें, ब्यूट 1ईन 3 आइन, ब्यूट 1ईन 3 आइन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको नोमेनक्लेचर की समझ आई होगी। अभी हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आज के लेसन में हमने देखा कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन के रूल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि अल्केन में, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन को शामिल करना है। अल्कीन की नोमेनक्लेचर में अल्केन के आखिर पे एन को हटाकर ईन लगाना है और नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड जो नजदीक हो। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, और आखिर पर एन हटाकर उसकी जगह पर आइन लगाएंगे तो वो बन जाएगा अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन दोनों की नोमेनक्लेचर के रूल एक जैसे हैं, सिर्फ वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाए तो आप डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करें और अल्काइन का नाम पोजीशन ऑफ आइन एंड पर लोकेट करें। आई होप
कि आपको आज का टॉपिक जब समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आप चलते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फॉर्मूलाई ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। नंबर 1, 3-methyl pent 1-ene 4-ine। इसका नाम यूं भी हो सकता है 3-methyl 1-pentene 4-ine। नंबर 2, 2,5,5 trimethyl hex 2-ene। नंबर 3, 1,5 hexadiene। नंबर 4, vinyl acetylene। नंबर 5, 3N-propyl 1,4 pentadiene। Question number 2, write down the names of following compounds according to IUPAC system। नंबर 1, ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसका आपने IUPAC नाम देना है। नंबर 2, नंबर 3, ये कंप्रेस फॉर्म में, जैसा कि ये कंप्रेस फॉर्म में है, पहले आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, फिर आपको क्लियर होगा कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है। नंबर 4, नंबर 5, इसमें भी आपको कंप्रेस फार्मूला बनाकर दिया गया है, आप पहले इसको एक्सपेंड कीजिएगा, फिर आप इसको नाम दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और प्रैक्टिस के साथ आप नोमेनक्लेचर को प्रोसीड कर सकेंगे। अगर आप नोमेनक्लेचर को सीख जाते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना आपके लिए मसला नहीं रहेगा। इसलिए नोमेनक्लेचर को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। आज का लेसन हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।